हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ रहे थे, 12th का फिजिक्स, 12th फिजिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ इमिसिविटी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी E of a given surface is ratio of emissive power R of surface, emissive power of R of surface to emissive power RB. Power RB of a perfectly black body, perfectly black surface, ठीक है, at the same temperature, ठीक है। इसको हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो E इक्वल टू क्या आएगा? R अपॉन RB, ठीक है। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए क्या है? E का वैल्यू 1 है। फॉर अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी E इक्वल टू 1, whereas for a perfect reflector E equal to 0. Everyday objects are not identical black body, hence they radiate at a rate less than that of black body. The rate doesn't depend on the property, ठीक है। The rate does depend on properties such as color and composition of surface. In addition to temperature, ठीक है। All these effect together are taken in the term of E. All these together are taken care of in terms of emissivity, E, ठीक है। यहाँ तक देखो। First law of heat radiation पढ़ेंगे। Kirchhoff's
law of heat radiation and its theoretical proof. ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन deals with the wavelength, the specific radiation emission and absorption of body in thermal equilibrium. ठीक है, it deals with wavelength, a specific radiative, ठीक है, radiative emission and absorption of a body in thermal equilibrium. ठीक है, it states that at a given temperature ratio of emissive power to coefficient of absorption of a body is equal to emissive power of a perfect black body at same temperature for all wavelength. ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि एट अ गिवन टेम्परेचर रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इमिसिव पावर और कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन is equal to emissive power of perfectly black body at the same temperature and pressure. ठीक है, तो A equal to E हो जाएगा, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो और A is the function of lambda, E is the function of lambda. ठीक है, thus if a body has a high emissive power, it has a high absorptive power. तो जितना emissive power उतना ही absorptive power भी है, तो जितना कोई emit करेगा उतना absorb भी कर सकता है. Thus if a body has high emissive power, it also has high absorptive power. And if a body has low emissive power, it also has low absorptive power. ठीक है, किरचॉफ्स लॉ कैन बी थ्योरेटिकली प्रूव्ड बाय फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट. ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके बताया, दो ऑब्जेक्ट लिया है, ये तो देखो अभी प्रूफ बता देता हूँ इसका, किरचॉफ्स लॉ का. तो इसके लिए दो बॉडी को कंसीडर करो.
थ्योरेटिकली भी प्रूफ कर सकते हैं। तो कंसिडर एन ऑर्डिनरी बॉडी ए एंड परफेक्टली ब्लैक बॉडी बी। कंसिडर एन ऑर्डिनरी body A and a perfect black body B of identical geometric shape placed in a closure. Let R be the emissive power. Let R be emissive power of body A and RB be the emissive power of black body B. B emissive power of black body B and A B coefficient of absorption of body A. ठीक है, let if Q is quantity of radiant heat incident on each body in unit time. QA is the quantity of radiant heat absorbed by the body A. QA is quantity of radiant heat absorbed by body A. Then QA equal to A into Q होगा। ठीक है, absorbed equal to coefficient into total heat as temperature of body A and black body B remain same. Both must emit same amount as they absorb in unit time. ठीक है, since emissive power is the quantity of heat radiated from unit area in unit time. Since emissive power is quantity of heat radiated from unit area in unit time. ठीक है, यहाँ तक देखो। तो आगे का पॉइंट देखो, नेक्स्ट है क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी ए। क्वांटिटी ऑफ radiant heat absorbed by
body A is equal to quantity of heat emitted by body A. ठीक है, तो एब्जॉर्ब इक्वल टू इमिटेड के बराबर लिख दिया हूँ। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, फॉर्मूला फॉर्म में, ए क्यू इक्वल टू आर। तो एब्जॉर्ब है, ये इमिटेड है। फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी बी, क्यू इक्वल टू क्या आएगा, आर बी। तो अभी डिवाइड कर लो इसको, 2 ले लो, इसको 3 ले लो। 2 को 3 से डिवाइड करो, डिवाइडिंग 2/3 ए क्यू डिवाइड बाई क्यू इक्वल टू आर अपॉन आर बी। तो क्यू क्यू कैंसिल हो गया, ए इक्वल टू आर अपॉन आर बी आ गया। ठीक है, तो यहां से आर बी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, आर बी इक्वल टू आर अपॉन ए। ठीक है, बट वी नो आर अपॉन आर बी इक्वल टू ई। ठीक है, आर अपॉन आर बी कितना होता है, ई होता है ना। तो इसको 4 ले लो, इसको 5th ले लो। तो फ्रॉम 4th एंड 5th आर अपॉन आर बी इक्वल टू ई आया, इक्वल टू ए आया। तो क्या कंक्लूजन है, ए इक्वल टू ई है। जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही इमिट करेगा। तो ये थ्योरेटिकली प्रूफ कर दिया हूँ। ठीक है, ये लिख लो। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो देखो, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, रेडिएट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय ब्लैक बॉडी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो ये पहले भी बोला, तो रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय अ ब्लैक बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर। ठीक है, तो कितना ये इमिट करेगा उसके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हॉट बॉडी रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन अ लार्ज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर कोई गर्म बॉडी है तो ज़्यादा रेडिएट करता है एनर्जी को। हॉट ऑब्जेक्ट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन in a large range of frequency। तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होता है जब कोई बॉडी हॉट होता है तो। ठीक है, हेंस रेट ऑफ एमिशन पर यूनिट एरिया और पावर पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज डिफाइंड एज फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। हेंस रेट ऑफ emission per unit
hence rate of emission per unit area or power per unit area of a surface is defined as function of wavelength lambda of emitted radiation. तो लो टेम्परेचर पे कम ये इमिट करेगा, तो लिख लो एट लो टेम्परेचर द पावर रेडिएटेड is small and primarily lies in long wavelength region ठीक है. as temperature increase rate of emission also increases. as temperature is increased rate of emission increases fast. At each temperature radiant energy contains a mixture of different wavelength. ठीक है. तो टोटल एनर्जी एट हायर टेम्परेचर टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम इंक्रीजेस. तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ के बराबर होता है. यहाँ तक लिखो, फिर ग्राफ बताता हूँ. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एट हायर टेम्परेचर टोटल एनर्जी radiated per unit time increases and proportion of energy emitted at higher frequency. और shorter wavelength also increases. ठीक है. तो हाई टेम्परेचर पे हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएट करता है और शॉर्टर वेवलेंथ इंक्रीज करता है. ठीक है. तो इसका अगर ग्राफ देखोगे तो ये ऐसे ड्रॉ होता है. तो वेवलेंथ है तुम्हारा 0, 500, 1000, ये है 1500, ये है 2000, ये 2500, ये है 3000. ठीक है. और y एक्सिस पे क्या है, रेडिएंट पावर. ठीक है. तो ये
ऐसे पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है। यहाँ पे क्या है लैम्डा मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 550 केल्विन, ठीक है। ये आपका विजिबल रेंज मिलता है, ये वाला जो है विजिबल रीजन। ये 5000 केल्विन टेम्परेचर है। यहाँ पर टेम्परेचर लो, तो हाईएस्ट टेम्परेचर पे हाईएस्ट वेवलेंथ मिलता है 5500 केल्विन, ये आपका टेम्परेचर। फिर और लो टेम्परेचर रहेगा तो लो वेवलेंथ मिलेगा, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे हाई वेवलेंथ को ये रिप्रेजेंट करता है ग्राफ। ठीक है, पॉज। तो इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो क्या बोलता है, एट ए गिवन टेम्परेचर एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एट अ given temperature energy is not uniformly distributed in a spectrum, ठीक है। स्पेक्ट्रम मतलब फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, दैट इज as a function of wavelength, ठीक है, of black body, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, एट ए गिवन टेम्परेचर रेडिएंट पावर इमिटेड इनिशियली इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ। एट ए गिवन temperature radiant power emitted initially increase with increase of wavelength। and reaches its maximum value and then decreases, ठीक है। इंक्रीज होगा फिर क्या होता है, डिक्रीज होता है। maximum then decreases। wavelength corresponding to the radiation of maximum intensity is characteristics of temperature radiating body। the wavelength corresponding to radiation of maximum intensity lambda max is characteristics of temperature of radiating body। ठीक है, ये तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। तो it is observed that wavelength for which emissive power of body is maximum
is inversely proportional to absolute temperature. The wavelength for which emissive power of a black body is maximum is inversely proportional to absolute temperature of black body. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या मिलेगा? लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 1/T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T. तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू B/T. ठीक है, तो B क्या है? वेन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो. तो B इक्वल टू लैम्डा मैक्स इंटू T. ठीक है, तो सिंपल है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा इसका वेवलेंथ कम होगा. इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, वेवलेंथ फॉर विच इमिसिव पावर ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ये सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए. ठीक है, तो B क्या है तुम्हारा? वेन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट. तो लिख लो वेयर B इक्वल टू वेन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, वेन्स कांस्टेंट. ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होता है B का? ये होता है 2.897 10⁻³ ये है मीटर केल्विन. ठीक है ना, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेट ले लेता हूँ. तो B इक्वल टू 3 × 10⁻³ मीटर केल्विन होगा. ये समझा ना? यूनिट का कैसे निकाला? देखो, लैम्डा का यूनिट मीटर होता है और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है ना. तो B का यूनिट मीटर इंटू केल्विन है. M क्या आपका? मीटर है. K क्या है? केल्विन है, टेम्परेचर का यूनिट. यहाँ तक क्लियर है? तो लैम्डा मैक्स इंडिकेट द वेवलेंथ एट विच ब्लैक बॉडी डोमिनेटली रेडिएट. तो लैम्डा मैक्स indicates the wavelength at which black body dominantly radiates. ठीक है, तो 10 इट कॉरेस्पॉन्ड टू डोमिनेंट कलर. ठीक है, ये लिख लो. फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करो 3.5. नेक्स्ट स्टेफेंस लॉ पढ़ेंगे. नेक्स्ट लॉ है स्टेफेंस लॉ, बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन. स्टेफेंस लॉ, इसको स्टेफेंस बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन में बोलते हैं. Stefan's Boltzmann law of radiation. ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है रेट एट विच हीट इज रेडिएटेड फ्रॉम यूनिट एरिया और परफेक्टली प्लग बॉडी. तो ये तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ना. तो इसका डायरेक्ट मैं डिफिनेशन बताता हूँ स्टेफेंस लॉ. तो लिख लो द रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया
और पावर radiated per unit area of perfectly black body. Perfectly